Hi, my name is Devki. I work with Red FM in Ahmedabad. You've already seen me in different Insta lives. और आज हम एक बहुत ही यूनिक लाइव करने जा रहे हैं. आपको पता है कि रेडियो फॉर इंडिया एक पूरी बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है कि जिसके अंदर इंडिया के सारे रेडियो स्टेशंस आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर ब्रांड्स सो दैट यू स्टे इंडोर्स. ये स्पेशल एफर्ट जो हम कर रहे हैं, basically all the radio stations are trying to say that in the crisis moment for the entire country, we are all together. और इसी बात को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट जताने के लिए हमारे साथ आज रेडियो मिर्ची से आरजे ध्वनित होने वाले हैं. Now I have a very interesting story that I have to share with you about Dhwanit. So Dhwanit and I have studied together in school. हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं और हम कभी भी स्कूल में नहीं मिले थे. आरजेइंग, तो मैंने ध्वनित को जब मैं पहली बार मिली तो मैंने उससे बात करते हुए कहा था कि so which school did you go to? And he said I was in CN Vidyalaya in Ahmedabad. There he is. Hi. Hello. Hi. તો હું બધાને કહેતી હતી કે આપણે બંને જણા એક સ્કૂલમાં ભણ્યા છીએ એવી અફવા તે વર્ષોથી ફેલાવેલી છે, but you never came to that school. तुझे ना बहुत डोडाई ना થઈ શકે. Okay, what's happening in Gujarati now? Guys, we are from Gujarat. Both of us work in Ahmedabad, and he works with Radio Mirchi. He does the morning show there, and I've been working with Red FM. And I do the morning show. So apparently people think that we are competitors, but people have no idea that we have been friends, and we have lived with radio for as many years together as we have lived in RJ. Correct. 18 years. 17 years. Okay, you're like a girl. I don't want to add an extra year to my life. So I can also tell you that Dhwanit and I were part of the same RJ hunt. The first RJ hunt of India. उस जमाने में ना ही इंडियन आइडल हुआ करता था, ना ही और कोई ये सिंगिंग कंपटीशन. The first reality show of radio, the first RJ hunt of India, जो हुआ था गुजरात में, और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. अहमदाबाद से हम, there were like 1800 participants. और उसमें से बहुत सारे अलग अलग राउंड्स होने के बाद में फाइनल राउंड जो था, जो आखिरी 10 फाइनलिस्ट्स थे, उसमें मैं और देवकी हम दोनों साथ में थे. और जब सब लोग अंदर परफॉर्म कर रहे थे ये दिखाने के लिए कि वो फाइनल राउंड में क्या करेंगे, उनका क्या क्या टैलेंट है, they were impressing the judges. I and Dhwanit were sitting outside in a lobby thinking, यार हम कहाँ फंस गए हैं, हमारा क्या होने वाला है. And the fact is, only 2 people have still been RJs in the history of those many years, right? Yes. So after that night, things changed completely upside down for both of us. Totally. And I just remember one moment where Devki was performing on stage. She was reciting a nice poetry written by Chandu Bhai. Chandrakant Shah, a very well-known Gujarati poet. Yeah, and the poetry was about denim jeans. Yes. Oh, and when I was looking at her performance, I just thought, boss, अब ये तो लड़की जीत गई, अपना कुछ नहीं होने वाला, इससे बेहतर और क्या हो सकता है लाइफ में. Tell them you had a crush on me on the same day. Tell them, accept it. Come on. You have no idea. So I would want to reveal a lot of things about both of us. Finally, कौन जीता RJ Hunt is Shaunak asking. Shaunak पूछ रहे हैं finally RJ Hunt कौन जीता. बताओ देव कि कौन जीता RJ Hunt. हम तुम की जोड़ी जीती थी RJ Hunt. मतलब you will never accept that I had won the RJ Hunt. You will never ever accept. You won the RJ Hunt, and I refused to be an RJ because I was always an actor, and I said, "अरे मैं तो ये सब नहीं करने वाली, मैं तो ऐसे ही आ गई थी." And then, in fact, the radio giants like Tapas Sen had to kind of convince me कि baby, this is a good place to be in. You know, don't be like. And I was like, ये क्या है radio? तब तो we had no idea ना. So I am talking about 2003.
In 2003, in the month of February, March, this discussion was going on. 2004, February, March. Yeah. So I had already joined radio, and then my bosses came and told me that okay, Devki is also gonna join now. I said great. The next thing that follows is you will have to take care of her, and I was like okay. He's such a big boy. He's still taking care of me. What does that mean? And then when she came over, and when she did her first show, what an amazing voice. What an amazing voice that was. All right, so enough of past. Let's talk about सीक्रेट्स रिवील करेंगे ना, और भी बहुत सारे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस ऐसी है जो शायद हम दोनों को जानती ही नहीं है, क्योंकि रेड एफएम का नेशनल हैंडल है, रेडियो मिर्ची का नेशनल हैंडल है, एंड वी हैव पूरे they never get to know these inside RJ stories or scoops that it is ever possible that two such big giant radio competitors can have such amazing friendship between them. And so let's चलो celebrating. चलिए कोशिश करते हैं हमारी फ्रेंडशिप का प्रूफ देने की. तो एक सवाल मैं पूछता हूँ आपको मेरे बारे में, और एक सवाल आप पूछिए मुझे आपके बारे में, और जानते हैं कि क्या जवाब दे पाते. चलिए पहले आपकी बारी, लेडीज फर्स्ट. No. You ask me the first question. Okay. The first question. Should be. All right. So जब मैं शो खत्म करता हूं, जब मैं इतने सालों से शो खत्म करता हूं, तो मेरा साइनिंग ऑफ लाइन क्या होता है? When I finish my show, what is my sign off? You should sing your sign off. No, you should say. You should say it. Come on. Have Majani live. You should sing the song and tell people how beautifully you sing, yeah. Feel the music. Enjoy Majani live. Ab jo. I did not want to be just like a copycat. Okay, now you can do my sign off. Hasta la vista, baby. Dwanit taught me the spelling of hasta la vista. Yes. And we had a fight. She was not ready to believe what I was saying. And at that time, there was no Google. So I had to try to explain. मैंने कहा बॉस, hasta la vista का ये स्पेलिंग होता है. बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम गलत बोलो. मैंने कहा यार मैं पूरा स्टडी करके आया हूँ, मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ, तुमको दिखा रहा हूँ कि hasta la vista का ये स्पेलिंग होता है. मानने कोई तैयार नहीं. I know. बोला it took her 1 day to get convinced. मैं कहा तुम रेडियो पे बोल रही हो इतने टाइम से hasta la vista, तुमको पता भी इसका स्पेलिंग क्या है? What beautiful times, yeah, such amazing times. But I can tell everybody who is watching from India that Dwanit has been one of the most responsible jocks that we have in the country, and he makes us so proud. And he's so consistent and so hardworking that within the industry people would give examples कि यार मतलब links लिख के की जाती है रेडियो पे, इस discipline से काम किया जाता है. I've seen him going through all thicks and thins of his life, personally, professionally, but he has one thing that he has never taken for granted is his stardom in radio, his efforts in radio, the medium that he works for. So he's like. अब मेरी बारी है, तो अब इतना आप अच्छा बोल के मुझे एम्बैरेस कर रही है, मुझे इतना अजीब लग रहा है. 100 रुपए दिए मेरे बारे में अच्छा बोलो. तुम्हारे बारे में? अरे बॉस, रेडियो के माध्यम में विजुअलाइजेशन का अगर सबसे अच्छा काम कोई करता है, अगर कोई चीजों को जैसी है उससे भी बेहतर दिखाने का काम कोई करता है, मतलब अगर आप ताजमहल विजिट करते हैं, तो आप ताजमहल विजिट करते हैं, उसकी ब्यूटी को आप देख रहे हैं, आप निहार रहे हैं, और उसी ब्यूटी को सिर्फ शब्दों के जरिए, लफ्जों के जरिए, आवाज के जरिए, आवाज के आरोह अवरोह के जरिए, और उस डिस्क्रिप्शन में चुनिंदा शब्दों के जरिए, सही लैंग्वेज के जरिए, जो अगर कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, जिसको मैं 5 में से 5 मिर्ची दे सकता हूं जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, इस देवकी. जितने भी आरजेस मैं पढ़ाता भी हूं, जब भी आरजेस को कभी मुझे इफ आई ट्रेन आरजेस, आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल कि बॉस, अगर आप आउटडोर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आप स्टूडियो में नहीं हो, अगर आप रोड पे हो, और अगर आपको रोड से बात करनी है, किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, किसी किस्से को डिस्क्राइब करना है, तो देवकी को सुनो.
मुझे दुनिया दिखती इतनी खूबसूरत है यार, मैं क्या करूं? आई एम हाँ, वेरी ऑप्टिमिस्ट। मैं तो चश्मे के नंबर आ गए, लेकिन तुम्हारी आंखों का नंबर जो है मेरे आंखों में आज तक कभी नहीं आया। तुम्हारी दृष्टि से दुनिया देखने का मजा ही नहीं मिलता यार। नजर नजर की बात है बच्चू, नजर नजर की बात है। But it's a fantastic opportunity that we have. I don't think any of us had imagined that in such a difficult time for the country, we will have such a beautiful time, a memory forever. Yes, I had never imagined कि कोरोना की वजह से कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब एक स्क्रीन पे मैं और देवकी साथ में बात कर रहे होंगे, क्योंकि and in all the official handles of Radio Mirchi and Red FM India. So Radio for India, hashtag Radio for India, we stand together in the difficult times, और हम सारे रेडियो स्टेशंस पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश के जरिए आप सोचिए कि 82% ऑडियंस रेडियो को सुन रहा है पूरे देश में, क्योंकि रेडियो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रेडियो की बहुत ज्यादा रेडियो की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, और हम इस क्रेडिबिलिटी की जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझते हैं। तो हम ना सिर्फ एंटरटेनमेंट देते हैं, हम मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट देते हैं आपको। सारे रेडियो स्टेशन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप जब कुछ भी वक्त हम में इन्वेस्ट करें तो उस इन्वेस्टमेंट का अहमदाबादी लैंग्वेज में कहें तो आपको रिटर्न मिले। गुजराती नफो धंधो धंधो भाई, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम में तो आपको रिटर्न मिलना चाहिए उसका। Absolutely, absolutely. And that's why today also we are going to share something really beautiful. हमारा बनने ना बहुत सारे मित्रों से हमारे दोस्त हैं जिन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया है ऑन अ पॉडकास्ट जिसका नाम है लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना। अब देयर इज अ वेरी पॉपुलर बुक in English literature which is called The Love in the Times of Cholera. और उसी reference से, because Corona is also such a difficult time, so this has been written by Mishka, and Mishka has been an RJ as well, and it's been voiced by Mantra and Mishka also. और हम आपको आज ये बहुत ही beautiful piece जो है वो सुनाना चाहते हैं। हाँ, हमने सोचा कि ये जो ऑडियंस है उसको जो भी 10 मिनट हमको देख रहे हैं उस 10 मिनट में कुछ तो मजा आना चाहिए, कुछ नई बातें जानने मिलनी चाहिए। तो वी विल ट्राई टू रीड आउट समथिंग। जिस तक आजकल होता है कि लोग वीडियो कॉल करते हैं अगर रिलेशनशिप में है और कहीं और फंस गए हैं, कोई एक अपने घर पे कोई दूसरा अपने घर पे, तो दोनों जो बातें करते हैं वो बातें आज हम करने वाले हैं। एंड दिस मस्ट बी हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम I and Vanita have had a very interesting chemistry in the radio history, and that's why we chose that we want to share something that was matching our handshakes that we used to do. We're talking about the times when people used to think कि radio जो है वो सिर्फ vertical सुना जाता है, horizontal नहीं सुना जाता। So लोग सिर्फ रेडियो सुबह से शाम तक सुनते हैं, पर रोज शाम को सेम टाइम पे अगर सुनते हो ऐसा हो सकता है कि नहीं। In the mornings, currently, if you ask in Ahmedabad anybody, people will say कि वो horizontally ही सुनते हैं because now there are so many radio channels. So we had created very interesting characters, which is basically coming out of Battle of Sexes. So a man and a woman interacting. So that story had become quite a cult for us in Gujarati, which was called #HumTum. So, but this is the 2.0 of it. So that's what After 14 years of वनवास पूरा हुआ है 14 साल का। 14 साल के बाद हम इस तरह से किसी एक प्लेटफॉर्म पे साथ में बात कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। Sure, let me also play some music so that we get some nice feel to it. Yeah, very nice. हमेशा से देवकी की एक खासियत रही है माहौल बनाने की। चलो So, आपके किरदार का नाम है चीनू और मेरे किरदार का नाम है पॉपी। ओके। तो चलो चीनू, फोन उठाओ, बात करो मुझसे। ओके। पॉपी, कल रात को बाल खोदकर खड़े मत हो जाना बालकनी में हाथ में मोमबत्ती लिए। कोरोना तो बाद में होगा, कहीं पड़ोसी हार्ट अटैक से मर ना जाए। चुड़ैल हूं मैं क्या? अच्छा, याद है जब हम वो टेरेस वाले घर में रहते थे, मैं रात को फ्रिज से पानी पीने उठा और तुम अंधेरी रात में बाल खोलकर अपने मोबाइल की लाइट मुंह पे मारते हुए गाने सुन रही थी। यार मिनी हार्ट अटैक आ गया था मुझे तुम्हें देखकर। अरे मुझे नींद नहीं आ
बना रही थी, मैं गाने सुन रही थी। अरे तो बाल बांध लेती, ये मोगली बन के क्यों घूम रही थी? मेरा हेयर कट ऐसा था, लेयर्स वाला। अच्छा अच्छा, ये लॉकडाउन में अब कैसे करवाओगी हेयर कट, बताओ? यूट्यूब से देखकर वीडियो से खुद काट लूंगी मैं अपने बाल। रहने दो, काट लोगी एक बार, फिर अच्छे नहीं कटे तो रोज मुझे रुलाओगी सुना सुना कर कि अरे यार आई मिस माई हेयर, आई मिस माई हेयर। इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस करती हूँ। अच्छा, वो मनी हेस्ट आ गया तुम्हारा वापस? कैसे बोलते उसको, मनी हेस्ट, मनी हाइस्ट, पता नहीं क्या, मनी हाइस्ट, व्हाटएवर। उसकी वो टोक्यो को देखकर, ये तुमने बैंग्स वो टोक्यो को देखकर ही रखे थे ना? कितने क्यूट लग रहे थे ना, देखो लंबे बाल। अरे कुछ ही दिन लगते हैं क्यूट, फिर तुम क्लिप ढूंढती रहती हो बढ़ जाने के बाद। तुम अपने बाल देखो ना, हो गए 15 दिन, जंगल जैसे लग रहे हैं। यार बहुत किस्मत वाले होते हो लोग, बहुत लकी होते हो वो लोग जिन्होंने लॉकडाउन से पहले ही बाल कटवा लिए। मैं तो मतलब थोड़े दिन में इम्तियाज अली और हरिहरन के बीच में कहीं अटक जाऊंगा। हरिहरन साहब का गाना इतना अच्छा है, वो इतना सुरीला गाते हैं, तो उनको देख के मन नहीं करता कि उनको बिठा के बालों में तेल डाल दूं, अच्छी तरह से मतलब चंपी कर दूं। बदतमीज, तमीज तो है नहीं यार तुमको पॉपी, ऐसे बात करते हैं इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए। बुराई थोड़ी की है, प्यार है चीनू। मम्मियां नहीं करती है हमको प्यार, जबरदस्ती से तेल लगा देती है सिर में। हाँ, कल बना दिया ना मुझे चंपू रात को मम्मी ने। ऑफिस की जूम कॉल पे सारे लोग मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई नया इंटर्न हूँ, मैं कोई नया इंटर्न हूँ, ऐसे देख रहे थे सारे जूम कॉल पे मुझे। इतने क्यूट तो लगते हो तुम चंपू से, चिपके हुए बाल, अच्छी सी शर्ट, चश्मा और लैपटॉप। ऑफिस के लिए तैयार होके जब निकलता है ना मेरा चीनू, प्यार ही आ जाता है तुम पे कि आज तो ये लड़का बस दुनिया बदल देगा। कुछ भी, कोई सीरियल चल रहा है क्या कि घर से गंगाधर निकला और रास्ते में शक्तिमान बन गया? ये शक्तिमान वापस आ रहा है, देखा कि नहीं टीवी पे? देखा ना, मुझे तो लगता है ये फ्लॉप शो भी आना चाहिए और नुक्कड़ भी आना चाहिए, और श्रीमान श्रीमती और देख भाई देख तो स्टार्ट कर ही दिया इन लोगों ने। किले का रहस्य भी दिखाना चाहिए इनको। फिर क्यों डरा रही हो? वो किले का रहस्य में तो मौत का पंजा आता था, मैं तो बड़ा डर जाता था उसे देखकर बचपन में। वो अलिफ लैला आना चाहिए, तहकीकात आनी चाहिए। तहकीकात, अरे वो विजय आनंद वाला सीरियल मैंने एक्चुअली देखा नहीं, हमारे यहाँ पे ना डीडी मेट्रो नहीं आता। गरीब हाँ भाई हाँ, हम तो गरीब ही थे, पर कम से कम किसी की बाइक से पेट्रोल नहीं चुराते थे अपनी काइनेटिक के लिए, समझी? चीनो, वो बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। हम गरीबी सही, चोर तो नहीं थे, अब उसमें मजाक क्या? सब करते हैं यार, आई एम नॉट द ओनली वन। तुमने अपने डैड की बॉटल से विस्की चुराई थी कि नहीं, बताओ? वो अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए था। अरे दिल टूटा था भाई का। हाँ हाँ, बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था 8वीं कक्षा में इनका, देखो तो सही। पर यार वो अभिनव आज तक उतना ही बड़ा ड्रामा क्वीन है यार, अभिनव। अपनी शादी में बीवी की विदाई में कोई रोता है क्या? It was so hilarious यार। ऐसा मत बोले यार, सेंटी है गाय, थोड़ा इमोशनल है। वो हमारी पहली सेमेस्टर की इंटर्नशिप के टाइम पे जब मुझे ऑफिस के सिस्टम्स की फाइल मेरे से उड़ गई, गलती हो गई मुझसे, तो उसने क्या उल्लू बनाया बॉस को। बॉस को बोला कि फाइल तो वापस नहीं आएगी लेकिन सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। तो मतलब बॉस, हाँ हाँ, एक्चुअली क्या कुछ भी इंपॉर्टेंट था नहीं उसमें, सब चीज का बैकअप होता ही है। पर इंटर्न्स पे चिल्लाने का सबको बहाना चाहिए ना, इंटर्न्स होते ही चिल्लाने के लिए, बॉसेस के लिए। तो अब तो तुम बॉस हो, तो तेरा क्या तुम चिल्लाते हो अपने इंटर्न्स पे? अरे मेरा इंटर्न शहर के जाने माने लॉयर का बेटा है, वो टाइम पास के लिए आता है इंटर्नशिप में। लेकिन वो पिछला वाला जो इंटर्न था ना, मेरा प्रीवियस इंटर्न राघव, डू यू रिमेम्बर? ओ गॉड क्या लड़का यार, मतलब एक मौका नहीं दिया मुझे चिल्लाने का उसने। इंटर्नशिप खत्म होते होते मुझसे ज्यादा काम सीख गया था वो मेरा ही। क्या बात कर रहे हो? उसका प्लेसमेंट हो गया ना किसी बड़ी जगह? होना ही था, क्योंकि वो जहां से आता है ना, वह इंटर्नशिप काटी नहीं जाती, काम सीखा जाता है, मेहनत की जाती है, ताकि पापा का नहीं खुद का नाम चलने लगे। ब्रिलियंट बॉय यार, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और कुछ होते हैं ना मुझ जैसे आलसी, पैदा ही हुए हैं बोलने के लिए कि नींद आ रही है, सुबह सुबह उठने के बाद ही नींद आने लगती है। चीनू क्या करूं मैं? तुम्हें पता है मोदी जी कितना कम सोते हैं?
हाँ, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे थोड़ी लगेंगे ऐसे 12 घंटे सोएंगे तो मेरी तरह। तुम 12 घंटे सोती हो आजकल? 12 घंटे? तो और क्या करूं? नेटफ्लिक्स माफी मांग चुका है, बोल रहा है बहन बस कर, अब तूने सब देख लिया है। बुक्स भी मेरे पास लिमिटेड थी, और यहाँ वैसे भी यार होप टू माशाल्लाह मुझसे भी ना बड़ा सोचू, ये पपी लाई हूं ना मैं घर पे, देखना मेरी गोदी में सोता रहता है, गेट्स अप, प्लेज अ लिटिल, ईट्स एंड स्लीप्स इन माय गोदी लाइक दैट। यार 2 दिन से उसको देखा नहीं, उसका वीडियो भेजना मेरे को, वीडियो भेज वो पपी का। पहले तुम अपने हॉटस्टार का पासवर्ड और आईडी मुझे बताओ, उसके बाद कुछ भी मिलेगा। ये तुम मेरी वॉच लिस्ट खराब मत करो यार। हे प्लीज भेजो, वरना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चेंज कर दूं क्या? रोते रहोगे। ये तुमने बाल क्यों खोल लिए? वैसे ही चुड़ैल हो तुम, बाल क्यों खोल लिए? बाल रखो। मुझे चुड़ैल मत बुलाओ। चलिए हो गया, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। Thank you, Mishka and Mantra. But this is lovely. We had so much fun doing this, this fun experiment with love in the times of Corona. We all know कि माहौल बड़ा ही सीरियस है. We all know कि सब चिंता में है, सबको थोड़ा डिप्रेशन भी आ रहा है. तो ऐसे टाइम पे as Radio Mirchi, as Red FM India, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है that we make sure that we bring a little smile to your faces. We bring the hope back, and we make sure that you have all the strength to go through this time, because there is going to be a beautiful time again when we will all be out, but it's also a beautiful time just now when you can connect with your families. There's so many mothers, Dwanit, who have learned to use Zoom and house party, and they're talking to their family members. और किटी पार्टीज चलने लगी अब तो Zoom पे. एक्चुअली एक पार्टी हम भी कर रहे हैं विच इज कॉल्ड मिर्ची लिट फेस्टिवल, जो आज से ही शुरू हो रहा है. जिसमें ऐसा है कि लोगों के घर पे वो बालकनी में जाएं और रेडियो बजाएं, और रेडियो पे हम एक्सक्लूसिवली फॉर 2 hours वी आर गोइंग टू create and curate special playlists where they will have surprise songs for a particular community, particular society, colony जो है. तो आज से हम शुरू कर रहे हैं. So yes, all the radio stations are trying. जैसे अभी रेडियो सिटी का यहाँ पे एक मैसेज था, बहुत इंटरेस्टिंग था, वो चला गया ऊपर. But Radio City India also had put up a message that Red Mirchi have come together. That's so lovely. You should also अच्छा बहु બધા લોકો એમ કહે છે કે ગુજરાતીમાં વાત કરો, ગુજરાતીમાં વાત કરો. So because this was a national handle, तो हम हिंदी में बात कर रहे थे. और अब बात कर रहे हैं, पर आज रात को 10 बजे हमारे पर्सनल हैंडल से हम गुजराती में भी बात करेंगे आपके साथ. But there was a very interesting thing that we did, Dwanit. Red FM India and T-Series together did the largest digital concert on the YouTube channel of T-Series and Red FM. And it had 18 different artists. So Adnan Sami and Honey Singh and Neha Kakkar and Shilpa Rao and all these people came and sang from home. And they were inspiring, like Ayushmann Khurrana. I don't know if you've seen, but yesterday he had put up a video. क्योंकि हम Money Heist की बात कर रहे थे in the performance. तो Money Heist का वो जो गाना है Bella Ciao. So Ayushmann is performing that on his piano, because Ayushmann and Hrithik Roshan, and they all are learning piano lessons being at home. So I think we should inspire so many other people also, that they should go ahead and learn a lot of things that we are teaching on the Red FM page. I know there are guitar classes happening on Radio Mirchi page. Yes, वो बहुत अच्छे से हो रहा है. वो मेरा भाई है यार, उसके साथ गाना गाने में इतना मजा आता है. Really? अरे यार हम हमारे before we sign out, I want you to sing one Gujarati song for everybody. Let the national handle listen to one Gujarati garba. गुजराती गरबा? Of course. तो आप साथ में गा सके ऐसा ही गाते हैं फिर, तो थोड़ा आसान हो जाए. You will have to sing. केसरियो रंग तने लाग्यो अल्या गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल, केसरियो रंग तने लाग्यो अल्या गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल, झीणी झीणी जाड़ियो में लावो अल्या गरबा, झीणी झीणी जाड़ियो में लावो रे लोल. There's a special gift from our very beautiful singer from Ahmedabad who has his own music album. You should go and check it out sometime. Majani Life. Thank you. जितने भी लोग हमको नहीं पहचानते, कुछ लोग पूछ रहे हैं इन दोनों का नाम क्या है, तो फिर से एक बार बताते हैं. ध्वनित, देवकी, हम
तुम. And we are going to be together again at 10 o'clock from our personal handles. But this has been wonderful. We basically wanted to request everybody who is watching that please make sure that in this critical time, stay at home, be with your loved ones, spread the positivity, optimism, be patient, learn new things, make the most of the time that you generally keep complaining about. कि यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, घर पे तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, फैमिली के लिए टाइम नहीं है. I was saying it this morning कि वो सारे lovers जो बोल रहे थे ना, I need space in my life, are begging, I want to see your face again, please, I want to see your face again. Everybody who is sitting in front of each other, जो डाइनिंग टेबल्स पे अपन नहीं देखते कि सब लोग मोबाइल के अंदर ही होते हैं. There are 5 people sitting and everybody is on a mobile phone. Now people are so sick of watching other people in mobile phones that they really want to touch and feel and smell people. Which is nice. तो घर पे रहिए, बर्तन करिए, झाड़ू पोछा करिए, खाना बनाइए, नई नई चीजें सीखिए और अपने परिवार के साथ ये जो प्यार भरा समय मिला है उसे पूरी तरह से एंजॉय करिए और घर पे रहिए. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है स्टे होम. आज रात को मिलेंगे 10 बजे. मी एंड देवकी टुगेदर. पक्का मिलते हैं. Till then, if you have any questions, you please send us. Please send us the questions. Yes, a lot if of you people have have questions, please do that. I was saying that I would sign off for Mirchi, you should sign off for Red FM. अच्छा, ये कैसे करना है? So आप थे हमारे साथ और रेडियो मिर्ची 98.3 एक साथ. अब बोलो. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. Oh, now as you're saying, I'm sure a lot of people are going to do that. Bye. Hasta la vista, baby. Aaj machani life.